अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 and I am on page number 59. Please open your books and get the page 59. बेटा आप मैसेजेस ना करें एक दूसरे को। पूरा बास बेटा open your books, chapter number 3, page number 59. I'm just going to share my video. ओके बेटा, हम लोग आज करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 and our topic is to approximate a number to the nearest 10 and to the nearest 100. बेटा आपके माइक ऑफ नहीं हो रहे हैं, सो मैं उनको खुद से ऑफ करता हूँ। जब तक आपसे बेटा मैं कहूँ ना आप माइक को ऑन ना करें। बेटा माइक ऑफ करें। Okay, beta, our today's topic is to understand that how we can approximate a number to the nearest 10 and to the nearest 100. To just understand it, we have to follow some rules, or you should know about the basics of these digits. You have studied in your earlier classes about these digits, that we just look at the decimal point and we have digits on its left side and some digits on its right side. So from left side of the decimal, the first digit is called 1, then called 10 place, then called 100 place, after that 1000, 10,000, 100,000 and million. So our today's lecture is just focusing about 4 digits, that is 10, 1, 10, 100 and 1000. But you should remember this topic or this page very carefully before going this chapter. अगर आप इस पेज को अच्छी तरह से याद कर लेंगे बेटा, तो आपको ये पूरा चैप्टर समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो हम आगे चलते हैं। जो हमारा भी फर्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग सीखेंगे that what is the definition of approximation. बेटा approximation means value or quantity that is nearly but not exactly correct. वैल्यू जो हम लोग सर्च करते हैं, जो हम ढूंढते हैं, जब अप्रोक्सीमेशन करते हैं, ये एक्चुअली करेक्ट नहीं होती, लेकिन ये यस के बिल्कुल करीब करीब होती है। और अमूमन हम लोग अप्रोक्सीमेशन इसलिए करते हैं कि हमें एक रफ सा एस्टिमेट हो जाए कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले। बहुत हम लोगों ने कुछ ऐसे कुछ डिसीजंस लेना होता है, उसके लिए एग्जैक्ट फिगर्स नहीं चाहिए होती हैं, जस्ट एक रफ सा अप्रॉक्सीमेटली आंसर चाहिए होता है। तो उसके लिए हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेशन करते हैं, और ये अप्रॉक्सीमेशन इसको लेते हैं जिससे टाइम हो सकती है, लेकिन आज हम लोग फोकस करेंगे अप्रॉक्सीमेट डिजिट टू द नियरेस्ट 10 and to the nearest 100. And if we save some time, then we will proceed with the approximation to the nearest 1000. So definition of approximation, as I told you, that approximation means a value or quantity that is nearly but not exactly correct. So now look at the example given in this slide. That let's suppose if we have 4.1, we may call it 4, approximate. And if we have 9.87, we may say that okay, it's approximately equals to 10. Then similarly, 32.5 will make it 33. 195 is close to 200. 798 is close to 800. Why we use this approximation? Basically, we use approximation for the fast calculation or to get a fast result.
to proceed further, or to say do some further estimation or further calculations. I have placed a picture on the right side. The man is just want to understand that in the beans in the bottles are 10, 100 or 1000. So definitely he will guess that there might be 100. Although that is not the exact value, but he approximate that these are about 100, so that if you were to divide them, so it would be easy for him that he will first distribute how much he distributes to the how many people. He have a rough idea in his mind. So approximation, basic purpose approximation is only that. So we have some rules for approximation. जो first option शुरू करने जा रहे हैं, that is estimating a number to the nearest 10. अब जब nearest 10 पे आपने जाना है तो आपने यूनिट प्लेस को फोकस करना है. जब भी आपने एस्टिमेट करना है nearest 10, आप फोकस करेंगे किस डिजिट को बेटा, डिजिट एट यूनिट प्लेस. सो क्या करेंगे आप, you will look at the digit at unit place before decimal point. Decimal point से पहले की मैंने बात की आज, तो मैंने टेबल भी दिखाया था फर्स्ट शुरू में, तो वहाँ भी मैंने आपको फोकस करवाया सिर्फ डेसिमल के पहले के पॉइंट पर. डेसिमल के नेक्स्ट पॉइंट्स को मैंने तक नहीं छेड़ा, अभी उसके लिए और टॉपिक है जो हम बाद में स्टडी करेंगे. सो अगेन आई एम कमिंग टू माय एग्जैक्ट पॉइंट, दिस नंबर 1, we should look at the digit at unit place beta, and if this number ending with 0, 1, 2, 3, 4 only, कहाँ से कहाँ, from 0 to 4, 0, 1, 2, 3, 4. अगर बेटा ये डिजिट 0 से लेकर 4 तक रहता है, तो हम लोग हमेशा राउंडेड डाउन करेंगे. हम लोग कभी भी आगे नहीं जाएंगे, जो भी हमें नंबर दिया गया है हम उससे पीछे चले जाएंगे. And if this digit at unit place before decimal point is ending with 5, 6, 7, 8 or 9, in that case we will get round up. In that case जो नंबर दिया गया है हम उस नंबर से आगे जाएंगे, उस नंबर से पीछे नहीं जाएंगे. सो ये डिसाइड करना आपने कि आपका जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो क्या है. अगर 0, 1, 2, 3, 4 है बेटा तो हम राउंड डाउन पे जाएंगे, और अगर 5, 6, 7, 8, 9 है बेटा फिर हम लोग राउंड अप जाएंगे. इस पूरे को जरा फोकस करें. अच्छा, अब देखिएगा, लेट्स सपोज फर्स्ट एग्जांपल है मेरे पास 245, और एग्जांपल भी है कि आप इस राउंड ऑफ करो 245 को टू द नियरेस्ट 10. अभी मैंने आपको बताया कि जब आप नियरेस्ट 10 पे जब जाएंगे बेटा तो आप लोग फोकस करेंगे द डिजिट एट यूनिट प्लेस. अब जो 45 है इसमें डेसिमल तो है ही नहीं. अगर बेटा इफ यू डोंट हैव द डेसिमल, you should remember the decimal is present at the end. अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं होता बेटा तो जो लास्ट डिजिट है उसमें डेसिमल को कंसीडर कर देते हैं कि हाँ यहाँ होगा. अब यहाँ अगर जो देखा जाए डिजिट, अब आपने इस 5 उस रूल्स के मुताबिक फॉलो करना है कि क्या ये जो 5 है, नंबर 1 आप नीचे फर्स्ट बुलेट देखिएगा, as a digit at unit place is 5 which is greater than or equal to 5. 5 और उससे बड़ा है, ये 5 और उससे बड़ा है, वैसे तो 5 ही है. तो क्या करेंगे हम लोग, डिजिट विल बी राउंडेड अप. हम इस डिजिट को अपली राउंड करेंगे. हम यानी हम लोग को जो डिजिट दिया गया 245 इससे आगे जाना है, हमने इससे पीछे नहीं जाएंगे. अब राउंड अगर आपने आगे जाना है बेटा तो हमने फोकस किया यूनिट प्लेस पे, हमने रूल अप्लाई किया यूनिट प्लेस पे, लेकिन जो चेंज होगी बेटा वो 10th प्लेस डिजिट पे होगी. और वो चेंज क्या होगी, we will add 1 in the digit at 10th place. और इस वक्त इस क्वेश्चन में जो 10th प्लेस पे डिजिट है वो 4 है. क्या करेंगे हम इसमें, इस 10th प्लेस पे जो डिजिट है इसमें बेटा हम 1 ऐड कर देंगे. सो दिस 4 will become 5. जैसे ही बेटा 4 5 बन जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, जो यूनिट प्लेस जिसको हमने फोकस किया था बेटा, आपको उस यूनिट प्लेस को हटा देंगे और उसकी जगह 0 प्लेस कर देंगे. we will place 0 the digit at 1 place. So sir, I have a question. जी बेटा बोले. सर क्या कहते हैं, अगर किसी जुमले के अंदर में क्या कहते हैं डेसिमल नहीं है तो हमने उसको कंसीडर करना है कि एंड में डेसिमल है. तो सर आपने 4 को 5 कैसे बना दिया बेटा? देखो हम लोगों ने जब इसको राउंड ऑफ करना है ना, अब देखो डिजिट 1 प्लेस पे कौन सा डिजिट है मुझे ये बताओ. इसमें
बोले ना, जवाब दें आप, प्लीज आंसर। यस सर। जो डिजिट है बेटा वन प्लेस पे वो कौन सा है? 5 5। हाँ नहीं बेटा, वो वन प्लेस पे नहीं। 5 5 आपका वन प्लेस पे है। आपने इस 5 जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है, इसको आपने देखना है कि अगर ये डिजिट जो है ये 5 और उससे बड़ा हो, 5, 6, 7, 8 या 9 होगा, तो आपने इसको राउंडेड अप करना है। और उसके लिए आपने इससे पिछले वाला डिजिट को फोकस करना है। अब 5 से पिछले वाला डिजिट, जो डिजिट एट 10th प्लेस पे है वो क्या है? तो जो डिजिट 10th प्लेस पे है वो 4 है बेटा। उस 4 में आपने 1 ऐड कर देना है। 4 में आपने क्या करना है? 1 ऐड कर देना है, 1 ऐड कर, तो वो 5 बन जाएगा। तो इससे, और फिर बाद में जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है बेटा, उसको आपने 0 बना देना है, उसको ओमिट कर देना है। उस जगह आपने करना है प्लेस 0 ऑन द डिजिट एट 1 प्लेस। हमारा आंसर हो जाएगा 250। सर आई आल्सो हैव अ क्वेश्चन। जी बेटा बोले। कि अगर होल ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 10 हो, कि अगर ऐसा नंबर हो जिसके लास्ट में 10 हो। 10 नहीं होगा बेटा, 0 होगा, क्योंकि लास्ट हमें सिंगल डिजिट देखना है। या तो वो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या मैक्सिमम वो 9 तक जा सकता है। 2 डिजिट्स कभी भी नहीं देखेंगे। We will focus only one digit. In the case of nearest 10, we focus only the first digit, that is the digit at 1 place. अभी 1 प्लेस पे डिजिट एक ही होगा, एक से ज्यादा डिजिट दे सकते हैं, उसको हम लोग फोकस करेंगे। और वो डिजिट बेटा 5 है। अभी एक और एग्जांपल देखें, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, एक और एग्जांपल 273.1। अब यहाँ डेसिमल से पहले कौन सा फिगर है? आप देख रहे हैं 3 है, ऐसे ही है ना। अब ये जो 3 है ये 1 प्लेस पे है। ये देखिएगा, ये 1 प्लेस पे डिजिट है 3, ये 5 और उससे बड़ा है? नहीं है। As a digit at unit place which is 3 and which is less than 5, so the digit will be rounded down. The digit will be rounded down. अब डाउन में हमें जो 273.1 दिया गया बेटा, हमने इससे आगे नहीं जाना, इससे पीछे चले जाना है। लेकिन जो चेंज होगी बेटा, हम लोगों ने देखना यूनिट प्लेस को है, लेकिन जो चेंज होगी बेटा वो डिजिट एट 10th प्लेस पे होगी। 10th प्लेस पे इस वक्त क्या है? 7। और चूंकि हमारा जो डिजिट एट यूनिट प्लेस है वो 5 से कम है, सो हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो डिजिट एट 10th प्लेस है उसको रिमेन सेम छोड़ देंगे, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, ना कम करेंगे ना आगे उसको लेके जाएंगे। 7 रिमेन सेम, 7 7 ही रहेगा। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे बेटा, जो डिजिट एट यूनिट है बेटा, हम उसको भी 0 बना देंगे, और जो डेसिमल के बाद के डिजिट्स हैं वो हम लोग ओमिट कर देंगे। जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है 3 वो 0 बन जाएगा, 7 ऐसे रहेगा, तो आंसर आएगा 270। और डेसिमल और उसके बाद के तमाम डिजिट्स हम लोग कर देंगे, उनको हटा देंगे और नहीं लिखेंगे, तो हमारा आंसर बन जाएगा 270। ये समझ आया आपको? प्लीज आंसर। यस यस। इज देयर एनी कंफ्यूजन? दोबारा देखो, ये देखिए, दोबारा देखिए बेटा। जब आप नियरेस्ट 10 पे जा रहे हो, फोकस करोगे यूनिट प्लेस को। नियरेस्ट 10 पे जा रहे हो, फोकस करोगे यूनिट प्लेस को। नियरेस्ट 100 पे जा रहे हो तो बेटा फोकस करोगे 10th प्लेस को। ठीक है, अच्छा चलें हम थोड़ा सा एक और एग्जांपल की तरफ जाते हैं। यह 3743.1 और आपको उसको एस्टिमेट करना है टू द नियरेस्ट 100। अभी आप लोगों ने जो पिछली एग्जांपल की है उसमें भी हमने क्या किया है कि जब अपने 100 प्लेस पे डिजिट को लेकर जाना है तो हमने फोकस किसको करना है बेटा, द डिजिट एट 10th प्लेस को। अब यहाँ डिजिट 10th प्लेस क्या है बेटा, 4 है। 10th प्लेस क्या है बेटा, 4 है, which is less than 5। ये 5 से छोटा है। अच्छा, बल्कि उससे पहले मैं आपको ये एग्जांपल 3 करवाना चाह रहा हूँ, दिन में आया कि ये ज्यादा बेहतर है। पहले आप इस एग्जांपल को पहले फोकस करें। 3589। अच्छा, मुझे यहाँ बताएं आप कि यहाँ डिजिट 10th प्लेस क्या है। देखो मैंने इसको रेड कलर से शो किया है। यूनिट प्लेस पे या 1 प्लेस पे 9 है और 10th प्लेस पे 8। अब इस डिजिट को आपने फोकस करना है 8। ये 5 से बड़ा है
बिकॉज इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, सो हम लोग क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे। लेकिन राउंडिंग अप इस डिजिट नहीं होगी, 10th प्लेस पे नहीं होगी, बल्कि 10th प्लेस से जो पिछला डिजिट है, द डिजिट एट 100th प्लेस तक, उसमें चेंज आएगी जो भी है। So what we will do? We do just we add 1 in the digit at 100th place, and which is 5. तो जो डिजिट 100th प्लेस पे है जो कि 5 है बेटा, आप इसमें ऐड 1 करेंगे, तो ये जो 5 हमारे पास है 100th प्लेस में, 5 प्लस 1 करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 6। और इसके साथ ही बेटा जो बाकी रिमेनिंग डिजिट हैं, 10th प्लेस पे डिजिट है 8 और जो 1 प्लेस पे डिजिट है 9, दोनों को हटा देंगे और उनकी जगह 0 प्लेस करेंगे। हम प्लेस करेंगे 0 ऑन द डिजिट है 10th प्लेस, 1 प्लेस, एंड वी विल गेट आवर आंसर, दैट इज 3600, 3600। ये क्लियर होगी बात, आपको समझ आई हमारी बेटा? ये ज्यादा इजी एग्जांपल थी। अपने माइक ऑन करके मुझे बताएं, ये एग्जांपल समझ आ गया? Yes sir, it is very easy. Yes sir. Yes. अब एक Yes, अब हम sir. ओके बेटा, अपना माइक ऑफ करते हैं दोबारा जल्दी से जरा। अच्छा, अब हम देखेंगे कि इससे एक और फर्दर एग्जांपल पे चलते हैं। ये वाली जो भी मैंने पहले आपको दिखाई थी, 2743.1 टू द नियरेस्ट 100। अब यहाँ भी आपने 10th प्लेस को करना है। डेसिमल के बाद के डिजिट्स के नाम और हैं, डेसिमल से पहले डिजिट्स के नाम और हैं। तो यहाँ डिजिट एट 1 प्लेस इज 3, डिजिट एट 100 प्लेस इज 4, 1 प्लेस पे बेटा आपके पास 3 है और 10th प्लेस यहाँ आपके पास 4 है। तो चूंकि हमने इसको नियरेस्ट 100 पे लेके जाना है, तो 10th प्लेस जो डिजिट है उसको फोकस करेंगे। इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में डिजिट 4 है, व्हिच इज लेस देन 5, और चूंकि 5 से छोटा है बेटा, तो हम क्या करेंगे, हम लोग उसको राउंडेड डाउन करेंगे, यानी हम डिजिट से आगे कभी भी नहीं जाएंगे। 2743.1 इससे पीछे रहेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। और अगर आपका ये जो डिजिट है 10th प्लेस है, ये 5 से कम है, तो फिर आप क्या करेंगे बेटा, जो डिजिट एट 100th प्लेस है उसको आप एज इट इज छोड़ देंगे, फिर कोई चेंज नहीं आएंगे। सो जो डिजिट एट 100th प्लेस है वो 7 है, तो अपने आपको 7 एज इट इज छोड़ना है, क्योंकि हमने डाउन जाना है, अप नहीं जाना। अगर अप जाएंगे, अप जाना होगा तो 1 ऐड करेंगे, अगर हमने राउंड डाउन जाना होगा तो उसको एज इट इज हम लोग छोड़ देंगे। सो हम लोग प्लेस जो 100th प्लेस पे डिजिट 7 है उसको रिमेन हम एज इट इज छोड़ेंगे। और फिर क्या करेंगे, जो हमारा 10th प्लेस और 1 प्लेस पे डिजिट है 4 और 3, उनको हटा देंगे और उनकी जगह 0 लगा देंगे। प्लेस 0 ऑन द डिजिट एट 10th प्लेस, एंड आल्सो वी ओमिट द डेसिमल पॉइंट एंड द नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट, तो सब कुछ हम ओमिट कर देंगे और सिर्फ उन्हीं 4 नंबर को फोकस करेंगे जो हमारे डेसिमल से पहले लिए गए हैं। और हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा, दैट विल बी 3700। अगेन देखें बेटा, नियरेस्ट 100 पे जाने के लिए आप फोकस करेंगे डिजिट एट 10th प्लेस, व्हिच इज 4 एंड आल्सो लेस देन 5। सो इसको हम लोग राउंडेड डाउन करने के लिए जो डिजिट एट 100th प्लेस है, जो कि यहाँ 7 है, आप उसको मेन सेम आप छोड़ देंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट्स हैं, डिजिट एट 10th प्लेस और यूनिट प्लेस, इनकी जगह 0 प्लेस कर देंगे और सिंपली आपको अपना आंसर आ जाएगा 3700। ये समझ आ गया आपको? क्लियर हो गया तो मुझे बताइए प्लीज। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, yes. Yes, sir. Yes, we have understood it. Yes, sir. अच्छा बेटा, ये कुछ वीडियो मैंने साथ लगाई हैं, ये आप जो प्रेजेंटेशन आपको जब इसमें आपकी गूगल क्लास में अपलोड हो जाएगी बेटा, तो आप ये वीडियोस को जस्ट आपने इस Yes, को sir. क्लिक कर, आपने इन वीडियोस को ना जस्ट क्लिक करना है, आपको हो जाएंगी और आपको जो लेक्चर मैंने दिया है उसको समझने में आपकी बहुत हद तक हेल्प करेगी। यहाँ मैंने प्ले तो कर दिया, लेकिन यहाँ आपको इसकी आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि में हमारे पास इसकी ऑप्शन नहीं है कि हम इसकी साउंड करो। और मैं भी बस इसको जस्ट आपको दिखा ही रहा हूँ। आप लोगों ने जब अभी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन आपके गूगल क्लास में ऐड हो जाएगी, तो आपने पर इसको वहीं जाके देखना है। तो 2 वीडियोस हैं, जो एक नियरेस्ट 10 के लिए है, एक नियरेस्ट 100 के लिए है। आप ये दोनों वीडियोस को वॉच कीजिएगा। इसका कुछ वीडियोस हैं जो आपको होमवर्क दिया जाएगा, उसको ना आप लोगों ने थोड़ा सा जरा प्रॉपर्ली मैनेज करना है। माइक को बेटा म्यूट रखा करें जब आपने बोल दिया।
अच्छा देखिए बेटा, ये मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल दी है। ये आप ना अपनी कॉपी का जो एक पेज है वो आप लोगों ने जो फर्स्ट पेज है वो इंडेक्स पेज बना रहे हैं, तो बिल्कुल इस तरह से ये बना हुआ है, सीरियल नंबर है, डेट आप डालेंगे, टॉपिक लिखेंगे और पेज आप अपनी कॉपी के पेज नंबरिंग करेंगे और उसको आपने पेज नंबरिंग जो है उसकी सारा रिकॉर्ड लाएंगे तो आपकी कॉपी के कौन से पेज पे कौन सी क्वेश्चन कौन सा एक्सरसाइज वगैरह जो है सॉल्व लाएंगे। और फर्दर कुछ इंस्ट्रक्शन है ये आप रीड कर लीजिएगा कि अभी तो पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है बाबर आपसे कह रहा बेटा कि अपलोड हो जाएगी आपको क्लास। और ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये जो आपकी दो असाइनमेंट है बेटा, एक होम असाइनमेंट 1 है और एक असाइनमेंट 2 है, ये आप लोगों ने अपनी कॉपी पे सॉल्व करनी है। ये जो पहली असाइनमेंट है ये नियरेस्ट 10 के लिए है। अब मुझे आप आई बार ये बताएं, आप में से किसको समझ आया हो 764 अगर मैं नियरेस्ट 10 पे करूंगा बेटा तो आंसर आएगा नंबर 1 पे। पहले कोई आंसर मुझे इसका नियरेस्ट 10 764 को नियरेस्ट 10 करूंगा तो क्या आंसर है? 760 होगा। ओके बेटा, क्वेश्चन क्वेश्चन 2 बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, क्वेश्चन 2 90 नंबर 3 30 30 is correct answer. Number 4 110 very good. Next one भी और बोले बेटा 983 किस पे जाएगा ना? 980 कल आप सबको समझ आ गई है माशाल्लाह से। अच्छा बेटा इस तरह से चले, बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व कीजिएगा। ये नियरेस्ट 100 पे जरा देखते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 1 सबसे ऊपर है 861। ये बेटा 870 नहीं बेटा नॉट 870 900 सर 900 शाबाश। अच्छा नंबर 2 क्वेश्चन बेटा 426 400 ठीक है। नंबर 400 नहीं, क्वेश्चन का बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर 10 500 वेरी गुड बेटा माशाल्लाह। 400 सर 500 शाबाश। अब बेटा आप इस काबिल हो गए इंशाल्लाह, आप इस स्लाइड को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा वो जो आपने में काम की हमने उसको फोटो कॉपी प्रिंट करवाना है या वो ऐसे ही करना है? नहीं बेटा, आपने अपने स्कूल का आपने इसको अपने स्कूल कॉपी करना है। ओके सर, दोनों असाइनमेंट आपको स्कूल कॉपी भी करना है, आज की डेट में करना है। और जब आप सॉल्व कर ले तो उसकी पिक लेकर ना पिक्चर लेकर तो आपने अपने ग्रुप में मुझे व्हाट्सएप पे करनी है। सर आपने वो क्लासरूम पे अपलोड करना है? बेटा क्लासरूम में ये अपलोड अब मेरा ख्याल है होगी, अगर नहीं होगी तो इंशाल्लाह 11:30 अपलोड हो जाएगी ये वीडियो सारी। सर हमने भी जी बोले बेटा। सर हमने भी अपलोड करना है गूगल क्लासरूम में अपना काम, या मतलब स्कूल आएंगे? बेटा आपने कॉपी पे काम करना है और कॉपी पे पिक्चर करना मुझे तो मुझे व्हाट्सएप कर देनी है बस। आप ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करनी है। हाँ बस ग्रुप में चेक करके ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने काम कर लिया है। हम चेक नहीं करूँगा, अगर प्रॉब्लम सर पर वो तो है कि वो सिर्फ एडमिन नहीं कर सकते मैसेजेस। मैं अपने आप नीचे गिर गया। चले मुझे आप नेक्स्ट वीक चेक करवा दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीक आपको ना राइट से दूंगा, आप लोग उसमें फिर ऐड कर सकेंगे। पिक्चर आप बेटा ऐड कर सकते हैं, मैसेज ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक खुल जाएगा। आपने बस पिक्चर लेके तो व्हाट्सएप करेंगे तो मुझ तक पहुंच जाएगी, आपको ब्लॉक नहीं करेंगे, मैं आपकी अनब्लॉकिंग कर देता हूँ सारी। ठीक है बेटा, तो बेटा टाइम मीटिंग का खत्म हो रहा है इंशाल्लाह। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।